রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবে যাওয়ার শাস্তি, ইমামকে প্রাণনাশের হুমকি, জারি করা ফতোয়া। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशনের প্রধান ওমর আহমেদ ইলিয়াসের বিরুদ্ধে কড়া ফতোয়া জারি। एक बिंदु उनका यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए? आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। ফতোয়া প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ইমাম। তার কথায়, যারা রাম মন্দিরের ইভেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য তাকে ঘৃণা করছেন তারা পাকিস্তানে চলে যান। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। রাম মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি, সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ালো। 22 জানুয়ারির পর থেকে নাগাড়ে হুমকি ফোন পেয়ে যাচ্ছেন ইমাম। রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবে দেখা গিয়েছিল ইমাম ওমর আহমেদ ইলিয়াসকে। অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট, আর তাতেই ঘটল বিপত্তি। নাগাড়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ইমামকে, এমনকি একটি মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কড়া ফতোয়াও জারি করা হয়েছে। ফতোয়া প্রসঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ইমাম। তার কথায়, যারা আমায় ভালোবাসে, দেশকে ভালোবাসে, তারা আমার অবশ্যই সমর্থন করবে, আর যারা রাম মন্দিরের ইভেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য আমায় ঘৃণা করছেন তারা দয়া করে পাকিস্তানে চলে যান। ইমাম ওমর আহমেদ ইলিয়াসি আরো বলেছেন, ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করতে ষড়যন্ত্র করে তার বিরুদ্ধে এই ফতোয়া জারি করেছে একটি দল। ফতোয়াতে এই ইমামকে কাফির বলে তকমা দেওয়া হয়েছে, প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয়েছে ওমর আহমেদ ইলিয়াসিকে। জানা গিয়েছে, মুফতি সাবির হুসেইনের নেতৃত্বাধীন মুফতি ক্লাসেস নামে একটি দল এই ফতোয়া জারি করেছে। ওমর আহমেদ ইলিয়াসি বলেন, রাম মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পাওয়ার পর আমি দুদিন বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি, তারপর অযোধ্যা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত ছিল। আমি দেশের সম্প্রীতি রক্ষার্থে সেখানে গিয়েছিলাম। অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম হিসাবে আমাকে রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমন্ত্রণে জানানো হয়েছিল এবং আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা সেখানে স্বাগত জানানো হয়। সেদিন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর আমার মনে হয়েছিল দুটি ধর্মের বিশ্বাস আলাদা হতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বই আমাদের এক করে। ইমাম আরো বলেন, আমার এবং আমার পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ভারত ইসলামিক দেশ নয়, ফলে এইসব ফতোয়া এখানে চলবে না। আমি যে ভালোবাসা এবং সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিচ্ছি তা কারো পছন্দ না হলে সে পাকিস্তানে চলে যেতে পারে। আমি কোনো ভুল করিনি। প্রাণ প্রতিষ্ঠা উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য আমি না তো ক্ষমা চাইবো আর না আমার পদ থেকে ইস্তফা দেব, এমনই মন্তব্য করেছেন ইমাম। এই প্রথম কোন ইমামের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হলো ইসলাম ধর্মে। ইমাম ওমর আহমেদ ইলিয়াসি ইতিমধ্যে দিল্লি পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হয়েছেন, একটি এফআইআরও দায়ের করেছেন। পাশাপাশি গোটা বিষয়টি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও চিঠি লিখেছেন তিনি। আমাদের কাছে রয়েছে ইমামের সেই ভাষ্য, ওনার ভাষ্য থেকে শুনে নেব বিস্তারিত। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे। एक बिंदु उनका यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए? आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला,
एज ए चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफरत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फ़तवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ़ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको, मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है,
हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।